Welcome to our first ever episode of a new show, Basdeep Samachar. Or you could say Basideep Samachar, aka BDSM. We take pride in our wordplay. And as a news channel, comedy is our forte. So welcome to BDSM, where the only thing I'm supposed to do is be politically correct. Because मैं नहीं चाहता चंद चुटकुलों के लिए मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े. साला कुत्ता. But I would still like to say कि यहाँ पे तुम्हें न्यूज से ज्यादा जोक्स मिलेंगे. But not more than our Indian news media. मैं अकेला उनकी क्रिएटिव राइटिंग टीम को बीट नहीं कर सकता. You may get some actual news, a little bossy, but hey, at least you are getting it, unlike me. Moving on, बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ. हमारी पहली न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कुणाल कामरा मेड अ जोक. यही न्यूज है. आई डोंट नो इफ आई शुड से कि न्यूज जोक के ऊपर है या न्यूज ही जोक है. आई वुड लेट यू डिसाइड दैट, क्योंकि इफ आई वुड से एनीथिंग तो तुम्हें पता ही है क्या होगा. कुणाल कामरा मेड अ जोक ऑन अ डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. और फिर वही हुआ जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में होता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया. जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है. आई डोंट लाइक दिस. सपोर्टर्स ऑफ द डेप्यूटी मिनिस्टर वैंडलाइज द हैबिटेट. नहीं, कुणाल कामरा का हैबिटेट नहीं. वहां तक तो कैसे पहुंचना उनको पता ही नहीं है. तमिलनाडु आ जा. किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? The deputy minister himself said that he does not support the act of his supporters and also taught us a third law of motion. In light of this response, I must say our politicians have a savage way of replying, quite literally. Considering the recent chain of events, I can't play the clip or repeat the joke itself. बिकॉज मैं अपने हेल्थ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता. After this controversy, there was an outrage again for some reason for freedom of speech and comedy and how you cannot criticize anybody in the government. I don't know. Doesn't make sense to me at all. Why this outrage? You're literally doing the joke and still? Just a week before Kunal Kamra's video, there was a clip of Mr. Modi regarding criticism. आलोचना और कैसे डील करते हैं. तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है. What Mr. Modi said was a very powerful thing to say by a sitting prime minister of a democratic country. And in light of that, I'd like to criticize Mr. Kunal Kamra for his inconsistent uploads on social media, especially YouTube. It is such a shame for Mr. Kamra that a sitting prime minister has more uploads in a week than he does in months. और सर उनके पास तो एक टीम है ना, गुजराती टाइटंस उनकी टीम है. अरे नहीं सर, मैं उनकी सोशल मीडिया टीम की बात कर रहा हूँ जो उनके लिए उनका यूट्यूब चैनल हैंडल करती होगी. तो सर इट्स वेरी लाइकली कि कामरा के पास अपनी सोशल मीडिया टीम नहीं होगी. प्लस उसका कंटेंट भी थोड़ा अलग है, तो मे बी ही डजंट नीड इट और doesn't want to have it. Makes sense. So I criticize Kunal Kamra for not having a social media team. पर सर ये तो justified नहीं है ना. ये इंडिया है, यहाँ सब कुछ justified है, as long as you're on the right side. अरे वाह सर, अब तो मजाक में politically correct statements भी दे देते हो. नहीं, मैं इस देश में जिंदा कैसे रहते हैं बस वो बता रहा था. चल अब चाय ला. पर सर अभी तो आपने चाय पी. नहीं, वो कामरा के बारे में बात की ना तो चाय पीने का मन कर गया. पर सर चाय तो बहन कुछ नहीं सीखा. सॉरी फॉर दैट. बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ. हमारी अगली न्यूज आ रही है इंडियाज गॉट लेटेंट से. नहीं, वैसे इंडियाज गॉट लेटेंट से तो कुछ नहीं आ रहा. हमारी अगली न्यूज आ रही है इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से, जहां पे अपूर्वा मखीजा aka द रेबल किड इज बैक ऑन सोशल मीडिया. एंड लेट्स जस्ट से इट वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर अपूर्वा मखीजा. उसका बुरा समय अभी खत्म नहीं हुआ. After the whole India's Got Latent debacle, Apurva Makhija deleted all her Instagram posts and uploaded screenshots of all the abuse, death threats and rape threats she got during the
controversy. She also uploaded a YouTube video talking about the whole experience and how things went behind the scenes. She shared how she was humiliated, abused, harassed, and even doxxed. Her family was also abused, and she got more abused for sharing the abuse she got on social media. Yeah, that makes sense. Basically, she was abused again for complaining about the abuse she got in the first place. Their argument was, why are you complaining? Sorry. The argument was, why are you complaining? Because everybody gets abused. This is the norm on social media. So just take it, and no need to take your name too seriously. इसने क्या करा? रोया, धोया, पीआर करी और आप लोगों ने भर भर के व्यूज दिए, अटेंशन दी, सिंपैथी दी। सारी फेमिनिस्ट कह रही हैं कि हाँ देखो, वी सपोर्ट हर। यही तो प्रॉब्लम रही, यही तो प्रथा रही है। इसी की वजह से तो लड़के आज असुरक्षित हैं। And there is a YouTube channel called Peepoy. And here I thought I am bad at naming channels. Peepoy, aka Akash, और मैं करता हूँ पर्दाफाश। made literally 3 videos on it. Well, he made 2. तीसरा तो damage control के लिए बनाना पड़ा. According to Mr. Akash, Rebel Kid is an hypocrite because she abuses in her own videos. So she has no right to call out anybody for abusing her. Logically makes sense. If you abuse, you cannot say no to abuse. But sir, वो एलविश यादव के टाइम पे अब एक और चीज है कि जो मदर की क्लिप यूज करना है, कई लोगों को लगेगा कि यार क्या है, बस एक स्टेटमेंट ही तो है, 2 सेकंड की क्लिप तो है। बट देखिए, अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके जाते हो या किसी की भी फैमिली पे पर्सनल अटैक करते हो, दिस इज लाइक अ पर्सनल अटैक, दिस इज लाइक बिलो द बेल्ट। एंड देन यूजिंग हिज मदर्स क्लिप वेयर इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन अ डीमीनिंग मैनर हरासेस हिज मदर, अंडरस्टैंडेबल, इट वाज देयर इन द पब्लिक डोमेन, पर उसको यूज करना इनसेंसिटिव है। पर सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीजें बोल रही हो, इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में अगर आप ये चीजें बोल रही हो, तो ऑब्वियसली आपको वही चीजें मिलेंगी। तो अगर आप इस तरह की इंडिसेंसी दिखा रही हो, इस तरह की बदतमीजी कर रही हो किसी के साथ, तो उसके लिए आप क्यों रेडी नहीं हो? और आपकी मदर, जिनको आप ढाल बना के वीडियो में रो रही हैं और अटेंशन और सिंपैथी ले रही हैं, आई एम 100% श्योर कि आप उनसे भी कैसे बात करती होंगी। क्या आपकी माँ ने कभी नहीं बोला कि ये इस तरह की लैंग्वेज आप क्यों यूज करती हैं? पूर्वा, थोड़ा सतर्क रहें, ये देखें कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कौन कितना बड़ा हिपोक्रेट है। टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, इंसान के व्यूज चेंज हो जाते हैं। आपके भी हो ही गए तीसरे वीडियो तक। He even shared a screenshot of Apurva abusing people, which was apparently 100% real proof, but now can be fake. एक चीज मैं बता दूं, मैं कभी भी अपने चैनल पे कभी भी अब्यूज नहीं करता, पर मैं किसी और के डीएम्स में भी जाके अब्यूज नहीं करता। अब ये स्क्रीनशॉट देख लो। और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग। जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, आई हैव डन माय ओन रिसर्च फ्रॉम माय ओन सोर्स। स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, आई एग्री। Hypocrisy. And in his second video, he shared another screenshot of Apurva abusing him from a fake account. गाइस, मेरे कल के वीडियो के बाद अपूर्वा मेरे डीएम्स में आके मुझे बोल रही है। And now you'd be thinking, how did he find that out that it was Apurva indeed? Well, he did that by matching the spelling of love. ये एक वर्ड से मुझे समझ में आ गया, अपूर्वा। But बहन के sorry. It was inappropriate. I take that back. Sorry, Mr. Akash. I didn't mean to say that. But seriously, I mean, इस level की investigation, man. And in the same video, he even talks about how Apurva drinks and how उसकी मम्मी को उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन abuse से प्रॉब्लम है। अब ये वीडियो देखिए, ये मैडम यहाँ शराब पी रही हैं। तो ये सब देख के क्या इनकी मम्मी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? बस इनकी मम्मी को जब इसको ट्रोल किया जा रहा था तभी प्रॉब्लम हुई। I don't know about you guys, but doing something that we enjoy and getting abused is 2 different things, ना? Just I don't know. मेरे को तो ऐसे ही लगता है। If I like to drink tea और फिर मुझे कोई गालियाँ दे रहा है just because मैं चाय पीता हूँ इसलिए वो मुझे गाली दे सकता है? Unless you want to vilify a drink, I don't know how it makes sense to you. It didn't to me, but it's me, I guess. इन मैडम पे ना पुलिस केस हुआ, ना इनको मीडिया में दिखाया गया, बिकॉज इनकी जेंडर की वजह से इनको पूरी छूट मिली। मैम पर पुलिस केस नहीं हुआ। लिटरली उसी वीडियो में शी टॉक्स अबाउट हाउ शी गॉट एन एफआईआर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ एंड हाउ शी नेविगेटेड थ्रू इट। वी फाइंड आउट कि हम सब लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। नहीं, हमें तो वीडियो देखना ही नहीं है, हमें जो बस एक नैरेटिव सेट करना है
unpopular narrative. और पॉपुलर नैरेटिव्स में मैं नहीं आता, बहुत सारे क्रिएटर्स आते होंगे, मैं नहीं आता। मुझे पॉपुलर नैरेटिव पे नहीं चलना, मुझे आपका दिमाग खोलना है। And after these two videos, there were some people who called him out for his stupidity. I was also gonna call him out, but just मेरे को 2-3 महीने बाद आने की आदत है, क्योंकि मैं क्लाउड नहीं लेना चाहता है ना. I'm not cloud chasing. And then he made an apology video, or I should say a damage control video. In that video, he backtracked on that 100% proof. He then said कि maybe it could be fake, which he could have said in the first video or in the second video, but नहीं, तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें कोई 4 लोग आके कुछ बोलना चाहिए. हमें तो तभी किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो हम तो अपना नैरेटिव सेट करके बैठे हुए, कॉल आउट करो तब कुछ होगा, 4 लोग स्यापा करो तभी हम कुछ करेंगे. मेरे को लास्ट 2-3 डेज में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई हैं जिन्होंने मुझे 100% ये यकीन दिलवा दिया कि जो अपूर्वा के साथ हुआ वो मेंटली इतना ड्रेनिंग था कि उस लड़की के साथ उस लड़की ने फेस कर लिया, हो सकता है कोई और लड़की शायद कुछ कर बैठती. ब्रो को बातें पता चली, जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहा था वो वीडियो नहीं देखा. लोगों ने आके से बताया कि भाई साहब इस सेक्शन को भी जरा देख लो जिसपे उसने ये सब कुछ भी बोला है. नहीं, तब तक नहीं देखा था. मतलब खुद से ही चेरी पिक किया है कि मेरे को वीडियो के किस पार्ट पे रिएक्ट करना है. मेरे को आ रहा है बड़ा गुस्सा. फालतू में गुस्सा हो रहा है ना, मेरे को गुस्सा नहीं होना चाहिए. नहीं, क्या बात है, कौन है मिस्टर आकाश, कौन पर्दाफाश करते हो तो खुद का भी पर्दाफाश हो जाता है कभी कभार, क्योंकि मैं हूं बस दीप जो जाता हूं डीप. अ लिटिल लेट बट जाता हूं डीप. आई लाइक टू कम लेट. तो लोगों को मैनिपुलेट करना बंद करिए. और मैं इस ऑडियंस से, इस यूट्यूब कम्युनिटी से, सोशल मीडिया की ऑडियंस से प्लीज प्लीड करना चाहूंगा, जिन्ने ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡ ਪੰਗੇ ਲਾਉਂਗੇ, the more you fuck around, the more you will find out. Before we get into our next news, I'd like to give you guys a disclaimer. हमारी अगली न्यूज़ थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, so मे बी उसमें थोड़े जोक्स ज़्यादा होंगे, so enjoy. हमारी अगली न्यूज़ है तीर्थ परसाना पर. If you guys don't know who Tirth is, he has 1 million followers on Instagram, and his hobbies include playing Valo with his boys and sending pictures of his ding dongs to girls. And he's also written a book called Lucifer Was Innocent, but he may not be. If you don't know about this controversy, thank me then, because I'm going to tell you now. And if you know, listen again, come on yaar, you can. You've watched this video for this far, तुम इतने वेले हो, इसका मतलब दोबारा सुन लो what happened. So apparently Teeth was sexting a girl out of nowhere. Apparently she got weirded out. He was not expecting him to be that creepy, but considering his book title was Lucifer Was Innocent, what would you expect? And to be honest, after seeing his chat, डिंग डोंग की पिक्चर भेजने की जरूरत नहीं थी, प्रोफाइल पिक्चर लगी तो हुई थी. And this is not even the most problematic thing he has done in this whole chats leaked controversy. He also texted a girl, or I should say underage girl. She was under the age of 18. And just for you Rajasthani folks, it is kind of problematic. I'm at rock bottom. मैं इससे नीचे नहीं गिर सकता हूँ. Bro is into underage girls so much that he even talks like them, ताकि पकड़ा ना जाए. तेरे हॉबीज क्या क्या है, तू क्या क्या तेरे को अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट? Sex. He also made a response video, or I should say a yapping video in response to this whole controversy. I'm calling it a yapping video because उस 27 मिनट में bro talked about everything from science, religion, his book obviously, and how he sacrificed his career for humanity, for you guys. And in response to this whole controversy, according to him, the media is attacking him. Now, by the time this video comes out, the mainstream media would have completely destroyed my reputation. And to be fair, he even laughs through it. I decided to launch this book, tell you guys the truth, and destroy my career forever. By the time that this video is uploaded, I will appear as a joke in front of everyone. To which
I actually am. Bro tried to cover it up, but the only thing he should have covered is his ding dong and his face. Basically the same thing. बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज आ रही है मिस्टर नितेश सोनी पर। इनकी भी चैट्स लीक हो गई। मेरा किसने मिला है? रात को वीडियो में अभी रात को भी नहीं हुआ, अभी है ऐसे देना। So apparently Mr. Nitish Soni was also sexting a girl on Snapchat, to which I'd like to ask कि इस उम्र पे Snapchat कौन चलाता है? Come on यार, मेरे से भी उम्र में बड़े, मैं Snapchat नहीं चलाता हूँ, but maybe clients की requirement रहती होगी and he likes to take good care of his clients, as you can see and hear. कब सही होगी? मैं रात को 9 बजे। तो कुछ खा लेंगे, फ्रूट तो खा ले। हाँ जी, थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। From मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना to fruits तो खा ले थोड़े बहुत। We all grew up, except him. Now the sexting is not a problem. Most people do that, not everybody, because हर किसी को नहीं मिलता। Sorry, personal नहीं होना। Sexting is a very common thing that happens between couples. So it was not a big deal that he was sexting a girl. The girl was not also creeped out. The girl was also responding fairly well. The problem is that he's married and he has a kid. So infidelity, cheating, बाहर मुंह मारना। हाल देख तेरा, गाल तेरे अंदर पिचके हुए हैं, अब पैर तेरे ऐसे लग रहा है जैसे कोई लकड़ी घूम रही है, थप्पड़ मारूं तेरे कान पे, क्या दिक्कत है? वेट नहीं बढ़ता ना एक। बट चलो आई गेस वो भी चल जाता है, कंसिडरिंग आजकल मैरिजेस मोस्टली फेल ही हो रही हैं। द ट्रेंड इज वेरी बैड राइट नाउ। इट्स जस्ट दैट कि सर का इंटरनेट पर्सोना भी थोड़ा इससे उल्टा है। एक लड़की आगे बोलती है चड्डी किस कलर की पहनी है, पूरा हिंदुस्तान का यूथ पागल हो गया, वीडियो पे शेयर। और मैं एक बात करता हूँ भारतीय संस्कृति बचाने को। Considering how he calls out the मर्द जात for being नामर्द। एक लड़की नंगे कपड़ों में वीडियो डालती ना, पूरे लड़के शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर यही एक लड़का वीडियो डाले, कोई लड़की शेयर करेगी क्या? तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। And calling out the मर्द for watching inappropriate videos of girls on Instagram. तुम्हें शर्म आती है क्या ऐसी लड़कियों को तुम वीडियो शेयर करते हो? कभी सोचा तुमने ये धंधा है? धंधा कैसे है? पहले तुम्हें जिस्म दिखाया जाता है, तुम लोग पागल हो जाते हो, बाद में ओनली फैंस पे तुम्हें ले जाया जाता है। But after all this, he also made a response video where he obviously denied it, called it fake and AI generated. AI be taking blame for everything. पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं मिस्टर नितेश सोनी पे वीडियो बनाने वाला था एज अ पार्ट ऑफ माई सीरीज, नॉट बिकॉज कि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो मेरे शहर आते रहते हैं। मेरे को यार ऐसे ढूंढने पड़ेंगे टॉपिक्स और पीपल जो मेरे शहर ना आते हो, एटलीस्ट मेरे शहर के 500 किलोमीटर की रेंज में ना हो। तो मैं इन पे वीडियो बनाने ही वाला हूँ, पर सर ने उससे पहले खुद ही अपना वीडियो बनवा लिया। कोई नहीं, मैं तो फिर भी बनाऊंगा, मुझे भी तो फल फ्रूट खाने हैं। एनीवेज, दिस इज इट फॉर सॉरी आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप यू गाइस एंजॉयड द एपिसोड। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। मेरा नाम है बसदीप, मैं जाता हूँ डीप। आप देख रहे हैं BDSM। ओए, मेरी चाय का क्या हुआ? ला रहा हूँ सर। अबे जल्दी कर, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ इससे अच्छा। ये 2025 है, 1970 नहीं। ओह सॉरी।